Third panel discussion, adapting learning pathways to meet the demand of the new economy. So we're almost ready for the third panel discussion. So first most, I would like to request our moderator of the session. I request Professor Dr. P.K. Mishra, Pro Vice Chancellor, the Global University. I request you, sir, to please kindly come and join us on stage. तालियों के साथ everybody all together, please welcome sir. With this, I also request Mr. Sudhir Gupta, Founder, Chairman, Muradabad Institute of Technology, Group of Institutions. Sir, I request you to please come and join us on stage. I request Dr. Jay Prakash Singh, Chairman, JP Group of Institutions. Dr. Prasenjit Kumar, Pro Vice Chancellor, Noida International University. I request Dr. Anshuman Srivastav, Director, Uttan Shambhunath Institutions. Professor Dr. Vikas Mishra, Vice Chancellor, Sri Ram Swaroop Memorial University. And Mr. Aditya Razdan, Director, Coursera for Campus. I request जिन भी dignitaries के मैंने नाम लिए हैं, जो भी यहाँ पे हैं, वो please stage पे आके मैं join करें. Thank you. To invite us, and especially Chandan, Manjan and the team members who was continuously following up day and night for this great event to be happen in the campus of the beautiful city of Tehzeeb, that is your Lucknow. Myself, Dr. Pankaj Mishra. I am also belonging from a very beautiful city of Uttarakhand, Dehradun. Presently working as a Pro Vice Chancellor to Global University, Saharanpur, Uttar Pradesh. And I welcome all the panelists on behalf of Adorcom Media. And today's topic is a wonderful topic given to us related to the economy of the India, which is going to be boom. In the morning, the Higher Education Minister also pointing out that we have the economy which is growing like anything. India is the fifth largest economy of the world, having $3 trillion plus, and we are having very soon we are going to touch, and the the largest economy of the world, and becoming greatest economy. And it is not just because of a particular person, it is all the power of triple D, demography, then the disciplines what we have and the pupil what we are working. इन सब के साथ हमारा जो देश एक साथ प्रगति कर रहा है. The growth engine of India has been, believe or not, started. Why? Because roti, kapda and makan was the main, the need of anybody. राइट और जब रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता आपकी पूरी हुई, तब आप आगे बढ़ते हैं और आप एक नई टीवी बाई करते हैं. थोड़ी सी और सैलरी आती, फिर आप सोचते हैं एक वॉशिंग मशीन भी लिया जाए. थोड़ी सी और सैलरी आती, फिर आप एसी भी लगाते हैं. ये जो पैसे आप लगा रहे हैं, दैट मीन्स पर्सनल, इफ एनीबडी फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड कैन डिफाइन द जीडीपी. GDP is what? Nothing but personal expenses का 50% तक contribution है. And personal expenses is what you are doing. And again the Make in India and other kind of the things. लेकिन ये देश ऐसे नहीं बन गया, ऐसे ही परेशान नहीं हो गया. सालाना अंदाज से चंदन ने शुरू किया, मंत्री साहब ने बात करी, तो मैं भी वहीं रखना चाह रहा था कि पराए आंसुओं से आंखों को नम कर रहा हूँ. मैं भरोसा आजकल खुद पर भी कम कर रहा हूँ. बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ. ये वो समय था देश का जब हमें पेट्रोलियम कंपनियों के सामने पेट्रोलियम बॉन्ड इशू करने पड़ते थे कि ठीक है भैया अभी रेट मत बढ़ाओ, पेट्रोलियम बॉन्ड इशू करते हैं, कुछ समय के बाद बढ़ा लेना. होप वी ऑल हर्ड अबाउट द पेट्रोलियम बॉन्ड न्यूज़ लास्ट 1-2 साल में हमने सुना. मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. ऐसी जो सिचुएशन थी, ऐसी जो समय था, वहाँ पर से लेकर आज इंडिया जो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, कोई मैजिक नहीं हो गया. हम सब 140 करोड़ भारतीयों का इसमें योगदान है. हर व्यक्ति का योगदान इस हॉल में बैठा है. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सिटिंग एवरीबडी इन दिस हॉल फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर किड्स, दोज हु आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. एंड टुडे वी हैव एज द पैनलिस्ट Dr.
Sudhir Gupta sir, founder chairman, Moradabad Institute of Technology Group of Institution. Then we have Ansuman sir. We have Dr. Ansuman sir also. Dr. Ansuman Srivastava is the director, Utthan Sambhunath Institution. It's in Lucknow, sir? Allahabad, the Prayagraj right now. And then we have Madam Dr. Sucheta Singh. She is the director of Rashtriya Group of Institution, Bareilly, a beautiful city. Recently I visited. Tomorrow also I am going. And we have our rock star Aditya Rajdan, the director Coursera for the campus. And the young generation, the entrepreneurs, young entrepreneurship is working with us. सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए इस पैनल डिस्कशन का शुरुआत करूंगा. सिंह साहब, आप गुप्ता साहब आपकी तरफ आऊँगा. गुप्ता साहब से हमारी कल से बात चल रही है. मिस्टर गुप्ता, व्हाट इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स आर नीडेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी एंड ग्रोइंग इकोनॉमी एट लार्ज? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट. थैंक यू वेरी मच. सभी विद्वज्जनों को और खाली कुर्सियों को मेरा नमस्कार. सुबह पूरी भरी हुई थी, अब इस समय आधी है. देखिए, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ. सीधी सीधी बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो यह है कि आज जो हमारे देश की सोसाइटी है, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहे. जो आज हमारे देश की सोसाइटी है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस सोसाइटी को प्रॉपरली फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को देखने की बात है. मेरे विचार से एजुकेशन के 3 उद्देश्य होते हैं. पहला उद्देश्य ये है कि हम अपने विद्यार्थियों को इस काबिल बनाएं, उनको इतना स्किल दें कि वो अच्छी प्रकार से धन कमा सकें और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें. उसमें हम बिल्कुल शायद ठीक कर रहे हैं. हमने अपने स्टूडेंट्स को मनी मेकिंग मशीन बना दिया है और दिन रात उनको कह रहे हैं साहब पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ. दूसरा जो उद्देश्य एजुकेशन का है वो ये है कि जो हमारे अंदर बहुत सारे गुण लेकर के हम पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ को हम सद्गुण कहते हैं और कुछ को दुर्गुण कहते हैं. तो एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि हम सद्गुणों को बढ़ाएं और दुर्गुणों को नीचे लाएं. जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आदमी को इंसान नहीं बना सकते. तो आज उसकी कमी मुझे महसूस होती है. मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन पिछले 26-27 सालों से मुरादाबाद में 4 टेक्निकल कॉलेजेस चला रहा हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ और सोसाइटी को देख रहा हूँ. और मुझको कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं शायद उससे हम अपने विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं. तीसरा जो एजुकेशन का उद्देश्य मेरे विचार में है वो ये है कि हम सोसाइटी को अच्छी प्रकार से चला सकें, सुव्यवस्थित तरीके से चला सकें. ये एजुकेशन से हमें अपने बच्चों को बताना होगा. इसमें भी हम कहीं फेल कर रहे हैं. आज आप देखिए, अखबार उठा के देखिए, 3/4 अखबार केवल अपराधों से भरे हुए होते हैं. हर तरीके के अपराध हो रहे हैं. घर के अंदर अपराध हो रहे हैं, घर के बाहर अपराध हो रहे हैं. जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, कभी कभी मुझे शर्म आती है. मैं वकील हूँ, पेशे से वकील हूँ, इसलिए जरा अपराध की बात ज़्यादा पता होती है. लेकिन हम देख रहे हैं कि नवविवाहिताएँ लड़कियों को मारा जा रहा है घरों के अंदर, दहेज की वजह से, किसी और वजह से. हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाक हो रहे हैं. कभी कभी तो यहाँ तक आता है कि अभी शादी की मेहंदी सूखी भी नहीं है और तलाक की बात शुरू हो जाती है. ये क्यों है? ऐसा क्यों है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है. सोसाइटी में हम इनडिसिप्लिन में हैं, कंप्लीट इनडिसिप्लिन है. ना हमारे घरों के अंदर डिसिप्लिन है, ना बाहर डिसिप्लिन है. आज के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. टीचर्स को भी ये समझते हैं कि भाई हम तो पैसे दे रहे हैं इसलिए वो हमें पढ़ा रहे हैं. रिस्पेक्ट नहीं है. शहर के और सड़क के ऊपर का आप डिसिप्लिन दे ही सकते हैं. क्या डिसिप्लिन है सड़क पर? जब आप चलते हैं तो हमने रूल ऑफ ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया. रूल ऑफ ट्रैफिक को हमने रूल ऑफ वाटर बना दिया. रूल ऑफ वाटर क्या है? जहाँ ज़रा सी जगह मिले घुस जाओ, वही हमने रूल ऑफ ट्रैफिक बना दिया.
हम ये देख ही नहीं रहे कि क्या डिसिप्लिन होना चाहिए सड़क पर चलने के लिए। सामने से गाड़ी आ रही है या इधर से गाड़ी आ रही है, हमें जहाँ मिली हमने घुसा दी। ये हम सबका है, कोई एक आदमी का नहीं है, सबका है। इसी तरह से आप देखेंगे हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो गई। ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम बवाल खाने लगे, एकदम चेहरा लाल हो जाएगा, हम भी पलट के जवाब देंगे। और क्या रिजल्ट होगा उसका? आपस में लड़ाइयाँ होंगी, और वो लड़ाइयाँ कभी कभी इतनी बढ़ जाती हैं कि कत्ल होने लगते। तो ये जो समाज की स्थिति है, इसको में अगर बदलाव लाया जा सकता है तो केवल शिक्षा से लाया जा सकता है। देखिए, आप कोई सरकार आ जाए यहाँ हमारे देश में, कोई कानून आप बना लीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कानून से कोई नहीं डरता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन शिक्षा कर सकती है। अगर हम इतने से अपने छोटे से बच्चे को लेकर के और आगे तक बड़े होने तक उसको क्लासरूम टीचिंग के तौर पर ये सब सिखाएंगे कि उसको भाई मॉरल्स सिखाएं, हम उसको इथिक्स सिखाएं, उसको डिसिप्लिन सिखाएं, उसको अपने भावनाओं पर, विचारों पर कंट्रोल करना सिखाएं, तभी तो कुछ आगे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके लिए जैसा कि मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति शुरू की थी हमारे देश की शिक्षा को ख़त्म करने के लिए, आज तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भूल गए। हमारी भारतीय संस्कृति में इस सारी शिक्षा हैं। अगर आप केवल भारतीय संस्कृति की तरफ देखते हैं तो वो सारी शिक्षाएं हैं जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम भूल गए। मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडित। मतलब यह है, पराई स्त्रियों को माता के समान हम माने, या जो मानता है, जो पराई स्त्रियों को माता के समान मानता है, जो पराये धन को मिट्टी के समान मानता है, और जो समस्त प्राणियों को, प्राणियों में सब हैं, आदमी भी हैं और नॉन ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, जो सभी प्राणियों को अपने समान मानता है, वही विद्वान है, वही पढ़ा लिखा है। अगर ये तीन चीज़ें हम अपने बच्चों को क्लास 1 से लेके और PhD तक पढ़ा दें तो आप देखेंगे कि 3/4 से ज़्यादा जो अपराध हमारे देश में हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ग्रेट, केवल इन 3 चीज़ों से। ग्रेट वर्ड्स सर। एक मिनट और जी प्लीज सर। मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े सर। देखिए, मैंने क्या किया है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर एक छोटी सी किताब लिखी है। क्या? 40 पेज की किताब है। उसमें फंडामेंटल्स हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, और वो किताब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। सर एक बात पूरे हिंदुस्तान में अब मिल जाए कॉपी? 30,000 किताबें मेरी बढ़ चुकी हैं। करीब 2,500 किताबें मेरी अमेरिका के स्कूल्स में बटी हैं। ग्रेट। और उसके अलावा इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर वहाँ भी गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किताबें देखिए, ये किताब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। नाम इसका है व्हाट इज़ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म क्या है? आप कहेंगे धर्म है ये। नहीं, अगर धर्म का मतलब आप मंदिर में जाना, टीका लगाना, पूजा करना मानते हैं तो मैं वो धर्म नहीं मानता। मैं धर्म वो मानता हूँ, यह धारयति स धर्म, जो हमारे को जीवन धारण करने की शक्ति देता है, जो हमें जीवन धारण करने की प्रेरणा देता है, जो हमें जीवन धारण करने का मार्ग दिखाता है, वो धर्म है। और इस किताब में मैंने ये लिखा है। बहुत जोरदार तालियों से समर्थन करें सर का। दूसरी बात और, एक मिनट का, एक सेकेंड राउंड पे हम लेंगे सर, सेकेंड राउंड पे। दूसरी बात और, वो मैंने दूसरा जो काम किया है वो ये किया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक क्वेश्चनेयर बनाया है जिसमें 200 सवाल हैं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। हर सवाल के आगे 4-4, 6-6 उत्तर लिखे हुए हैं। आपको सही उत्तर पर टिक मार्क करना है, और जो भी 100% सही
उत्तर देंगे उन सब व्यक्तियों को हम 5,000 रुपया नगद देंगे। वेरी गुड सर, ग्रेट इनिशिएटिव। और इसको हम जी। सारे अभी हमने 2-1 स्कूल्स में लॉन्च किया है और ये कोई परीक्षा नहीं है, हम उनको उत्तर देने का 5 दिन का टाइम देंगे जिसमें वो किताबें देखें, गूगल सर्च करें, गुरुओं से पूछें, सबसे पूछें और उसके बाद उत्तर दें। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ जानें और अगर वो जानेंगे तो वास्तव में कुछ अंदर डेवलपमेंट होगा। इसका जो एज लिमिट है वो 10 साल से 30 साल है और ये अभी 2 स्कूलों में चला है, लेकिन 15 अगस्त तक हम इसको 40,000 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास है, उसमें चलाएंगे और 1 लाख का मेरा एम है करने का। बहुत अच्छी बात है Thank you सर, very much. बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत जोरदार तालियों से आप स्वागत लोगों में करें। से कोई भी अगर जी। ये पुस्तक चाहे या वो मेरे क्वेश्चनियर चाहे तो ज़रूर से मैं तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से सर का समर्थन करें। और वो देश जहां मैं भी चाहता हूं कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का जन्म तो होना चाहिए, लेकिन मेरे घर पे नहीं होना चाहिए प्लीज़, है ना। वो वाली देश जहां पर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े मंचों से, लेकिन कोई एक संस्थान का संस्थापक अगर कहता है कि मैंने ये पुस्तक लिखी है, मैंने ये काम किया है और मैं लोगों के अंदर नैतिकता और छात्र छात्राओं के अंदर एक ऐसी भावनाएं लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर करतल ध्वनियों के पात्र हैं सर। जोरदार तालियां सर के लिए। समय की बाध्यता थी इसलिए हमें आपको रोक रहे थे सर, इसका क्षमा चाहेंगे। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम ज़िंदगी है, चलते रहिए जनाब। और चलने की इस कड़ी में हम चलते हैं डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव, डायरेक्टर उत्थान शंभुनाथ इंस्टीट्यूशन के पास में। बहुत सारी आज जो बात चल रही है इकोनॉमी की, जो मैंने बताया कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचने वाला है, वी आर गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस पूरे पाथवेज पे डॉक्टर श्रीवास्तव, व्हाट द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैव यू इंटीग्रेटेड इनटू योर इंस्टीट्यूशन, मे बी स्पेसिफिक, एंड learning pathway institution to learning pathways to enhance student real world problem solving abilities, right? Maybe 3 minutes and with your introduction also. Thank you very much. Okay, good afternoon. Myself, Dr. Anshuman Shrivastava, working as Director SIT Prayagraj. As sir asked a question that for skill upgradation and for skill enhancement, we are conducting a short-term courses on different types of topics, relevant and recent topics like AI, artificial intelligence, machine learning, blockchain, and additive manufacturing. We have also established a 3D printing setup at our campus, and we provide training programs on that. And I must share with you all that we have established an R&D department, and we encourage our faculties and our students for research and development. And every year our faculty publishes so many SCI papers in high impact factor journals. And we are also in our CRC department, that is Corporate Relations Cell department, prepare our student for industry. In that direction, we invite experts from industry to share the current problems and trends in the industry to make them aware of the present scenario that is prevalent in industries. So these are some efforts we are making in this direction. And this is I want to share for the skill upgradation that we are doing. Great, sir. Thank you very much for being brief and saving our time. कहते हैं कि तू अपनी जेब में 2-4 आंधियाँ भी रख, तू अपनी जेब में 2-4 आंधियाँ भी रख, जरा सी फूंक से मौसम नहीं बदला करता। तो मौसम बदलने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी एडटेक सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, और अच्छा लग रहा है। कोर्सेरा के डायरेक्टर, कोर्सेरा फॉर कैंपस के डायरेक्टर, बिल्कुल युवा बच्चा हमारे साथ में है, आदित्य राजदान। मैं स्वागत करता हूं आपका इस मंच पे, और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें ये बताएं, बिकॉज एकेडमिशियंस आर आल्सो देयर, सीनियर एकेडमिशियंस आर आल्सो देयर टुडे ऑन द हॉल। मिस्टर राजदान, हाउ कैन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्री डिमांड्स? क्योंकि देखिए, अभी मेरा चाहता तो हूँ कि मैं घर जाने से पहले मेरा कमरा, मेरा एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग एयर कंडीशन विद अ वाईफाई कनेक्टिविटी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ। लेकिन जब सिलेबस बनाने की आती है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में,
तो मैं कहता हूँ यार वो कॉपी पेस्ट कर लो किसी ठीक ठाक की यूनिवर्सिटी का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स टू एनीबडी और माई सेल्फ, राइट. इन जनरल सिनेरियो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के नाम से, एकेडमिक काउंसिल के नाम से, वी आर कॉलिंग फ्रेंड्स ओनली, हैव लंच टुगेदर, एक बढ़िया रेमोनेशन लो, घर जाओ, बट द एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है. तो इंडस्ट्री की डिमांड पूरी नहीं हो रही है. इंडस्ट्री इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस. इंडस्ट्री अपने आप को कह रहा है इंडस्ट्री 5.0, बट व्हाट अबाउट द एजुकेशन? वेदर एजुकेशन 2.0, 3.0, 4.0. मंत्री जी ने कहा कि सरकारों ने बदल दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई. 3 एनिवर्सरी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मना चुके हैं, पता नहीं और कितनी एनिवर्सरी मनाएंगे. कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के बताए और क्या अपने इंस्टीट्यूशन में हाँ जी मेरे यहाँ एनएपी पूरा इंप्लीमेंट है. पॉलिटिशियंस आर सेइंग, लोग कह रहे हैं. तो यहाँ पर अब समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में जहाँ इंडस्ट्री इज मूविंग एट अ फास्ट पेस, राइट, naturally, very right, sir. Some of the time, you know, the NAP is considered to be the dream document rather than a policy document. I also consider this, right. So coming to you, at the last we'll take the discussion, but now we have a panelist having representation of EdTech and industry, that too from the leading Coursera platform, leading EdTech platform. What is your view on it? Okay. Just to introduce myself, We'll take the doubts at the last, sir. my name is Aditya. I work as enterprise director with Coursera. And before I answer your question, you have to promise, I think, at least me one thing. By the end of this session, जो आपका ये शायरी का कलेक्शन है, ये ज़रूर दे दीजिएगा. बिल्कुल, थैंक यू. Because आपके पास मौके के हिसाब से शेयर लिखा हुआ है, ये मैंने देख लिया. तो I can use it somewhere else. Going back to the topic, what we are doing and how we are looking at things is, one, just for everybody's knowledge, today on Coursera you have 150 million learners. In India itself, there are more than 2.5 crore learners on Coursera. When there is new content coming onto the platform or new technology which comes in the market, there's a deep analysis which goes beyond it before we address it and bring the content onto the platform. Now, how do we do it is keeping in mind 3 things. One, what is going to enhance the employability of the student? Second, at the same time, is it workable in the market? Because Coursera is not only used by the campuses or individual learners, but also by the governments globally, also by the corporates. I was speaking to someone earlier today. I gave this example, so I'm just repeating it. I said, if in case there's an X organization where you have 2 lakh individual employees who are learning on Coursera, there's a lot we can know on the platform, and we pass it back both to the campuses that we partner with, also to the educators who are on the platform today. When you see, I think 2.5 years back or 1.5 years back, everybody was talking about metaverse. So there was content on metaverse. Today, everybody is talking about generative AI. I think we all started talking about it in November 22. In 23, Coursera had 74 courses addressing generative AI. Today, there are 374. What I want to say is what is relevant in the market today, we bring that onto the platform. That's one. And this is specifically keeping in mind what industry needs. So that's what we are doing at Coursera broadly. Great insights from the Coursera. And यहाँ पर अगर बात करें Coursera की, बहुत सारे EdTech प्लेटफॉर्म्स की, तो कोविड वाज जिसको कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना. तो इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस व्हेन देयर आर डिफिकल्टीज. तो हमारे शिक्षकों ने, आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया में आया कि कुर्सियों में मोबाइल फ़ोन को जूते की लेस से बांध करके क्लासेस ली, और वहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ EdTech प्लेटफॉर्म का. हालांकि Coursera एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, फॉरेन में भी इनके सॉल्यूशंस हैं. तो जो सॉल्यूशंस थे, जो दिशा देश को मिल रही थी, उस पर एक बात थी कि एक बात सिखाई हमें आँखों की नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने, और जो देख रहा था चिड़ियों को चुगते हुए दाना, उठा के फेंक दिया कटोरा हंसकर उस फकीर ने. कि जब सारे सॉल्यूशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम किस चीज़ के लिए परेशान हैं? तो मुझे लगता है कि अब जो हमारा जो डायरेक्शन होना चाहिए इस पैनल डिस्कशन का, कि हम हायर एजुकेशन को इकोनॉमी की तरफ कैसे लेकर के जाएं. डॉक्टर सुचिता सिंह डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बरेली की. आपके पास आना चाहूँगा मैम, और निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर सिंह, व्हाट इनोवेटिव अप्रोचेस हैज़ द राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड
to integrate interdisciplinary studies into your curricula. Although you have a limited, options to innovate something on the, courses and curriculum because you are following some universities. But how you, doing the difference? That's the question. And how this kind of changes will serve as, the catalyst for the growth of the economy. That's my question to you. First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. मेरा सबसे पहला तो यही मानना है कि अगर स्टूडेंट्स को हम काफ़ी इंटरेक्टिव स्किल्स या बहुत अच्छे उनको मौके दें तो शायद स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा इस तरीके से कि हम उनको डिफरेंट या स्मार्ट प्लेटफॉर्म तो दे रहे हैं, पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि क्या बच्चा उस स्मार्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर उसको गेन भी कर पा रहा है। ये भी एक हमारा पॉइंट है कि अगर हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्टूडेंट जो भी नॉलेज हम उसको देना चाह रहे हैं, जो भी नए करिकुलम में उसको लाना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ उसका ये भी ज़रूरी है कि हम उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उस तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि हम एफ़र्ट तो बहुत कर रहे हैं, पर उन एफ़र्ट्स के साथ हमारे इंस्टीट्यूट में क्या कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर बच्चे संस्थान में हैं या स्टूडेंट्स हैं तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से या हमारी तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी हम बच्चे को कोर्स से रिलेटेड, उसकी लैब से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जितना भी उसको सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, पूरी कोशिश हमारी तरफ से भी रहनी चाहिए प्लस स्टूडेंट की तरफ से भी रहनी चाहिए कि वो अगर है संस्था में सुबह से शाम तक तो वो कुछ तो एटलीस्ट सीख कर जाए। घर जाकर उसको ये तो लगे कि आज दिन भर में मैंने क्या सीखा। मेरी कोशिश तो दिन भर यही रहती है और शायद इतना करने के बाद स्टूडेंट में कहीं ना कहीं ये चीज़ उसमें डेवलप होगी कि अगर हम प्रोफेशनल कोर्स में है या हम कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक सीख रहे हैं तो कम से कम वो मेरे एम्प्लॉयमेंट में तो उसकी स्किल भी डेवलपमेंट हो, उसको एम्प्लॉयमेंट की उससे भी उसके लिए उसका बेनिफिट हो। सुचेता जी, वही मैं जानना चाहता हूँ हमारे जैसे एक तो हमारा है काफ़ी जो एजुकेशन जस्ट लिसन में एक तो हमारा है कि जो यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस दिया वो तो पढ़वाना ही पढ़वाना है, उसके साथ उसके अलावा मेरे पास में स्वयं है NPTEL है, भाई साहब बैठे हैं, कोर्सेरा है, स्मार्ट क्लासेस हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम लोग सेशन अलग से कैसे उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं ये हमें थोड़ा समझाइए। उसके लिए टाइम निकालने का ये है कि सर उसी 9 to 5 के क्यूरिकुलम में या उसमें हमने एक लेक्चर डालने की कोशिश की कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हमने सेशन चलाया हुआ है तो वीक में 2 बार बच्चे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन में ज़रूर जाते हैं। फिर अभी स्मार्ट क्लासेस का बहुत हमको हमारी तरफ है कि क्लासेस में बच्चा आए तो एटलीस्ट एक स्मार्ट क्लास में जाके वो ज़रूर सीखे जो चीज़ें हम उसको किताबों के माध्यम से या उस तरीके से नहीं बता पा रहे हैं तो वो स्मार्ट क्लासेस में टीचर्स के लिए भी आसान है, बच्चों के लिए भी आसान है कि वो स्मार्ट क्लास में आके क्या सीख रहा है। बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट उससे ये हो सकता है। तो कहते हैं ना कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, Only paper work is हिम्मतें not- लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और इंस्टीट्यूशंस की अपनी समस्याएं हैं, उन्हें किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करना है, साथ जी, में और बिल्कुल। कोर्सेज कराना है। सारा कुछ एम्बिशंस तो डायरेक्टर का है, वाइस चांसलर का है, लेकिन समस्या दूसरे एंड पे बच्चों की भी है कि आप बिल्कुल। बात करते हैं जिम्नेजियम में तो लाइन लगी हुई है जिम करने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी खाली पड़ी हुई है। बिल्कुल। एक समय होता था कि शहर की एक लाइब्रेरी होती थी जहां पर लाइन लगी होती थी कि कुर्सी मिल जाए 1 घंटे पढ़ लें, और आज उल्टा हो गया है कि शहर की लाइब्रेरी भी खाली है, आपकी संस्था की भी लाइब्रेरी खाली है, और आप जा कर के देखते हैं तो वो कैसे हम इंश्योर करें। तो सेकेंड राउंड पे फिर से आऊँगा दादा आपके पास में, सुधीर गुप्ता साहब के पास आऊँगा, और थोड़ा सा लगभग 18 मिनट का समय इस पैनल को ख़त्म होने में, इस बीच में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेने हैं, तो 3-3 मिनट का समय हम और लगाएंगे और इसे समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। डॉक्टर सिंह, सॉरी मिस्टर गुप्ता, हाउ डू यू एंश्योर दैट योर स्टूडेंट रिमेन रिलेवेंट एंड अलाइन विद करंट नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, ऑल्दो यू हैव स्पेसिफिकली मेंशन योर एफर्ट्स विच इज़ रियली अप्रिशिएबल। प्लीज़। देखिए, हम जो अपने इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक करीब 10 स्टार्टअप हमारे यहाँ पिछले 7 साल के अंदर शुरू हुए हैं, जिनमें से 3 स्टार्टअप्स को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवार्ड किया है, और इसके अलावा एक हमने इंक्यूबेशन सेंटर अपना शुरू किया है, सेक्शन 8 कंपनी बनाई है और उसके अंदर वो हम इंक्यूबेशन सेंटर हमने शुरू किया है। और एक हम जो कर रहे हैं वो आइडिया लैब हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं,
उसके लिए सारा प्रोग्राम तैयार हो गया है और विद इन अ मंथ शायद हम वो आइडिया लैब भी अपने तैयार कर लेंगे। और हम इन्वेस्टर्स से भी कनेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आएँ हमारे शहर के भी और बाहर के भी, और वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मिल कर के अपनी इंडस्ट्री में उनको ले सकें और मतलब उनकी इंडस्ट्री को हम अपने यहाँ अडॉप्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें। ये हम अपनी तरफ से अफोर्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। ये अनुभव है जीवन का कि धूप बहुत काम आई कामयाबी के सफ़र में, छाँव में अगर होते तो सो रहे होते। इन शब्दों के साथ मैं चलूँगा वापस सर के पास में, अंशुमन श्रीवास्तव साहब के पास में। अंशुमन जी, हाउ डू यू एनकरेज एंड सपोर्ट कंटिन्यूअस अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग? अब चल रहा है अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, अनस्किलिंग, ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं। तो अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग अमंग योर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टू कीप पेस विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वी हैव 3 minutes for that. Okay, sir. For upskilling of students and faculty, for faculty we organize faculty development programs, professional development programs, organize time to time workshops on recent topics, and we also encourage our faculty to participate in national and international conferences that are organized by various NITs and IITs. And we have also established an incubation center for encouraging our students for startup and entrepreneurship. And we have also recently signed a MOU with one American company named Atlas, and we are also moving forward in this direction to various tie-ups with industries just to make our student industry ready. And these are some efforts we are making in our campus to improve the quality and skilling them, these students. Thank you. Thank you very much, sir. Straightly forward moving to save the time, we have another 15 minutes to complete the session. And Aditya Rajdhan ji, Director Coursera for Campus, what strategies does Coursera employ to ensure that its courses and programs remain relevant and beneficial for lifelong learning, aiming to adapt to the new economy? And as I just discussed you, that you can focus on the micro credentials and other aspects what we can do, and how the students will be more attracted to your courses. Study says, दादा बैठे हैं मेरे, सुनील राय साहब, मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। स्टडी सेज कि only 16.8% is the success ratio of online courses for the course completion. Enrollment तो हम करा देते हैं, डंडा चला के कोर्स कोऑर्डिनेटर से सब कुछ करके एनरोलमेंट करा देते हैं, लेकिन 16.8% स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट the course successfully. How you will suggest that we could encourage the student employability enhancement and other things? Okay, I'll break it into 3 parts. And first I'll go back and answer what you had asked ma'am also. And I would want to focus how we are working with institutions and universities across India right now. There are 3 things that are broadly focused on. One is strengthening the academic curriculum. That's where we work very closely with campuses across India. They are able to integrate the courses which are available on the platform for blended learning. That's one, where the in-campus teacher is teaching some part of it. The rest comes from Coursera, and the examination is done by the university. Then the second part of it is where they are offering it as a standalone program. Say I have a computer science engineering program, I want to build AI ML as a specialization, I have mechanical, I want to build robotics or digital manufacturing or anything of that sort. So I'm able to offer courses separately as standalone. That's how universities are working, and they're able to encash the, I'm using this word specifically encash because there's a lot of content sitting on platform today. In terms of, there are 6,000 plus courses available, there are 3,000 plus guided projects available, then there are 800 specializations available. Now, what is the key focus for these campuses that we work with is to enhance employability, as I said earlier, and then to strengthen the curriculum. What they are able to do is divide it into 2 parts, pick the content from the world's top 200 universities or the institutions who are authoring content on the platform today, and then additionally pull in the content from the industry. So you have leading industries, leading organizations, 100 plus organizations authoring content on platform today, whether it's IBM, Microsoft, Google. So these industry micro-credentials are being used specifically by the campuses to enhance the employability.
Another beautiful case can be wherein I say, hey, I want my students to be a cybersecurity analyst. So there are specific tracks available. I want my students to be product managers, and I'm saying I want them to be at an exposition. What I also mean to say is that there are companies coming to my campus who might pick 1 or 10 of them. I want to get my students ready. So the focus for the campuses is industry micro-credential there. Now, bringing on to the lifelong learning, how we have seen the campuses building is offering Coursera, or as in the courses which are available on the platform today, to students across the years. Say semester 1, this is what you learn. Semester 2, this is what you learn. So it's pretty progressive in nature that ways. A beautiful example, again, another example would be wherein currently there are 140 plus campuses in India who are using Coursera. This includes public universities as well as private universities, where they have their different use cases. Somebody wants to enhance skills, so they may call it as advanced competency course or a skill enhancement course, and it is being offered for credit by these universities. Now, for the standalone campuses or the affiliate campuses, they are also using Coursera, but again, maybe for enhancing the employability and using it as a value-added course. That's how they are using it broadly. And offering it throughout the tenure of the program right from semester 1 to set the foundation. So you have MBA colleges across India, right? So in MBA, you will have an engineering student coming, a BCom, a BA, a BSc, somebody who has done some other course. So to build that base, you do foundation courses on Coursera and then get them into the program. So that's how broadly every campus we are working with is using Coursera today. Like how you ensure the engagement of the student, right? As I read the concern. Okay, it's third part of it. भाई मैंने तो percentage. एज अ प्रोवाइशन सर मैंने डंडा चलाया डीन्स जी। को, एचओडीज को, उन्होंने कोच कोऑर्डिनेटर्स से, मेंटर से कह के एनरोलमेंट तो करा दिया जी। आपकी ये कोर्स एआई के लिए अच्छी है, आपकी कोर्स एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अच्छी है, इंगेजमेंट के लिए क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, मे बी इफ यू हर्ड अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर बोथ स्टोरी ऑफ बायजूस, तो उनके जो टैब्स आते थे उसमें एक काइंड ऑफ बैजेस थे, असाइन अकम्प्लिशमेंट बैजेस, कि मुझे फॉर एग्जांपल सिल्वर बैज मिल गया, प्लेटिनम बैज मिल गया, स्टूडेंट थोड़ा सा उसमें मोटिवेट हो रहा है, तो डिजिटल बैजेस और समथिंग किसी प्रकार से कैसे इंश्योर कर रहे हो, ये थोड़ा समझाओ. So, okay, I would want to, well, as you did mention about EdTech, so we refer ourselves as a pure technology company. We are a platform. We are not building the content, we are hosting the content. It is delivered and built based on the digital pedagogy that Coursera has, but broadly we are the technology platform that exists. Now, answering your question quickly, in terms of when it gets embedded in the curriculum, they get certificates. So when we are saying a project manager, I was giving an example earlier, so the certificate is coming from Google. So that's what students get. Now, to engage the students further, typically we have seen wherever it is embedded in the curriculum, it is for credit, we have seen super 100% completions because it's for credit being offered by the university. At the same time, if in case you say where it is a value-added course, so there are engagements that we have seen our campuses where we work, they do run those engagement series with our teams, wherein they are able to bring that career focus for the students, what is that the student is going to get outside once they go outside the campus, so that they are able to bring in that angle to the students, which helps them to increase. And one point of fact, while as there has been, I think I was mentioning this earlier, digital learning fatigue also in the learners globally. Right. Pre-COVID and post-COVID, we still are witnessing growth year on year. Our growth has not gone stagnant. At COVID, we were at 1 crore something. Today we are 2.50 learners, right? 2.5 crore learners today. At the same time, it is the content which is driving it. You have fresh content coming in. It's something like, you start an OTT platform, you like the content, you start learning, you start watching more content. So here you have fresh content which is more relevant to today's world coming in very regularly. You'll be surprised to know on Coursera today, in a month, there are 60 to 90 new courses being launched every month. When I'm saying this, at the same time, there are few courses that go redundant every month based on if in case they do not have content which is relevant for today's audience. So it helps us to keep the audience engaged, the learners engaged, and that's where we see higher engagement across campuses in India or globally as well. Great insight, Razanji.
And really, as a challenge, although that tech companies or the tech solutions companies like Coursera are working hard, but again, we all have to ensure at our own level also. Last question for this panel, Dr. Suchita Singh ji. How do you ensure that students receive hands-on experience that prepare them for the complexities of modern workforce? So we will manage them through a Mic close कर लीजिए, right? ओके उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके जो उनको हम एक्टिवली करवाएं या स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक्टिवली दे कम इंस्टीट्यूट रेगुलरली एंड दे विल मेंटेन देयर क्यूरिकुलम एंड ऑल एंड दे गेन वी विल डू मैनी सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ we will give them many workshops in every month and every 15 days gap. So these type of workshops and they all attract the students. We will manage many type of activities just like the quiz and all. So through that, okay. Right. You want to add something? Yeah. I'm going to take a quick example and answer this question parallelly and add to what ma'am was saying. On Coursera today, when you see there are 800 specializations, every specialization comes with a capstone project. The idea is to give hands-on learning with capstone project. Beyond that, there are 3,000 projects, guided projects, which are sitting on Coursera today. These are pre-curated projects which give access to 150 plus softwares to the students. What does it mean is, if in case as a student, I want to learn what is Power BI, what is Tableau, I want to learn Canva, I want to learn even Microsoft Excel as a basics. So there are pre-curated projects which enable the students to have hands-on learning so that when they appear for their interviews or otherwise also, they know all these productivity tools, because these are pretty common these days. These are something which are must to have for every single person who is joining the corporate world today. Great insight. जी एक थोड़ा सा रैपिड फायर करना चाहता हूँ बस. हाँ. Last, because we are just running out of time, and also we are the only culprit between the lunch and yourself. तो एक rapid fire round, एक single recommendations, maybe from Dr. Anshuman first. Dr. Anshuman, what is the one recommendations from you for the student and the graduate should be employable? One recommendation. Maybe you take your mic. Sir, I think that where we lack is skill development, because most of the institution, our education is limited to the classroom teaching only. But I have experienced the last 15 years that least importance is given to the practical hands-on training. So I think that we must try and we must make each and every possible effort to make them industry ready. So in a skill enhancement is the most important thing that I feel. Thank you sir. Maybe from Gupta साहब. मुझसे क्या पूछना है साहब? एक सिंगल मुझे तो देखिए केवल एक ही बात कहनी है कि अगर हम छोटे बच्चे से लेकर और बड़े ऊपर तक सबको भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बता सकेंगे तो वो हर तरीके से डेवलप करेंगे. इकोनॉमिकली भी डेवलप करेंगे, सोशली भी डेवलप करेंगे और वो अपने सेल्फ को भी डेवलप करेंगे. वही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है. बाकी मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल तो आप लोग. बार आप ये कहते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल बातें बताई आपने सर, बहुत धन्यवाद आपका. जो सर ने कहा कि तहजीब अपनी ज़मीर, उस पर बात थी कि हसरत की ताबीज उतार कल्चर, लहू लहान कलेजे को हथेली पर निकार कल्चर, लोग पूजेंगे तेरे कदमों के निशां, अपनी तहजीब गर बचा सके तो बचा कर चल, हर कदम आँखों का पानी बचा कर चल. आप बताएं राजस्थान साहब, एक सिंगल लाइन रिकमेंडेशन टू ग्रेजुएट टू बिकम एम्प्लॉयबल. I think it's a combination of what Sir said and what Gupta Sir said, right? It's important to learn what is there in your culture, of course, and at the same time to be employable, learn what is relevant to the market today. If in case you're not learning what is emerging technology today, I think you are not there in the market. I'll just take probably, I think I can take 10 more seconds. Today, I think we are far away from the time earlier we used to say finance, marketing, education, अलग अलग डोमेन्स होते थे. आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज द ब्रॉडर अम्ब्रेला, राइट? यू हैव मार्टेक, यू हैव एडटेक, यू हैव फिनटेक.
So everything has come under the umbrella of technology today. So it's important for you to learn technology irrespective of who you are and what you do and what you want to do in life. क्वालिफिकेशन से मुझे मतलब नहीं, आप मेरे लिए काम क्या करके दोगे ये Absolutely. इन द मॉर्निंग चंदन ऑल्सो हैज सेड द डेकोरम ऑफ द डे कि मैं स्किल ढूंढता हूँ वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। MBA मार्केटिंग है लेकिन DM में अच्छा काम कर रहा है, तो बढ़िया है। Absolutely. लास्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम यू मैम। आखिरी एक रिकमेंडेशन, एक लाइन का रिकमेंडेशन बताएं, ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल कैसे बने, में भी हम आपको परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें ये देखना पड़ेगा कि करंट सिनेरियो में चल क्या रहा है। आई थिंक मेरे वो तो सबको पता है, आपका रिकमेंडेशन बताइए। स्टूडेंट को रिकमेंडेशन, वी विल मोर फोकस ऑन देयर रिसर्च की तरफ भी जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, हमें उनकी तरफ और थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो रिसर्च को और कैसे मॉडरेट कर सकते हैं, हम उनके लिए और उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली डू द कि कैसे हम उनको रिसर्च में और ज़्यादा वो करें। मेरे हिसाब से तो यही सर ऐड करना चाहेंगे गुप्ता साहब एक लाइन। एक लाइन मैं कहना चाहूँगा साहब कि आप बजाय इसके कि वो नौकरी ढूंढें, आप उन्हें नौकरी देने वाला बनाइए, तभी कुछ हम डेवलप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बात साहब, थैंक यू सो मच, ग्रेट पैनल, वंडरफुल डिस्कशन। अंत में मैं एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर हैं, और हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात करें तो हमारा काम कैसा है। कल मैं सर से कह रहा था कि सर कुछ काम ऐसा हो जाए कि दीपक का भी काम चल जाए और हवा का भी काम चल जाए। सर ने बहुत आशीर्वाद दिया इस बात पे कि मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। आप दीपो भवा। धन्यवाद। 20 सेकंड पहले हमने अपना पैनल खत्म किया। Thank you so much, everyone. Thank you for this wonderful session. एक बार जोरदार तालियां, everybody, for all our dignitaries. I would like to request Mr. Chandan Adan. I would like to request you to please kindly come and join us on stage to felicitate all our dignitaries. So first of all, I would like, yes sir. एक सेकंड है, अभी वो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट में मेरी किताब या मेरा क्वेश्चनर चलाना चाहें तो आपका स्वागत है, बता दीजिएगा मुझे। Wonderful. All right, so I would like to request our session moderator first, Professor Dr. P.K. Mishra. Please kindly come forward, sir. Thank you so much, sir. इतने अच्छे से हमारे सेशन को मॉडरेट करने के लिए जोरदार तालियां once again for sir, everybody. Thank you. Next, I would like to request Mr. Sudhir Gupta. Please kindly come forward. Thank you, sir. I request Dr. Anshuman Srivastava, so please kindly come forward. I request Mr. Aditya Razam, please kindly come forward. मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर स्वच्छता, मैम प्लीज काइंडली कम फॉरवर्ड।